السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ کنچا گچی بولی اراضی پر ترقیاتی کاموں کی رکاوٹ عارضی، شیطانی طاقتیں ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ پی جی آر فلائی اوور برج کا وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں افتتاح۔ میڈیکل ایجوکیشن کے شعبے میں 600 سے زائد اسسٹنٹ پروفیسرز کے تقررات کا اعلامیہ جاری۔ یو جی سی اسکل مختلف طبقات بشمول بی سی ای زمرے کو ریزرویشن۔ بہار میں خفیہ طور پر این آر سی نافذ کرنے الیکشن کمیشن کی دانستہ حرکت، غریب رائے دہندوں کو فہرست سے نکالنے کی کوشش، صدر مجلس کا شدید رد عمل۔ بوگس جاب کیلنڈر کا وعدہ، بے روزگار کے ساتھ دھوکے کے مترادف، ہریش راؤ کا الزام، روزگار فراہمی سے متعلق کھلے مباحث کا کانگریس نے دیا چیلنج۔ اور جائیداد کا جھگڑا، شیطان صفت بیٹے نے ماں کو زندہ جلا دیا۔ ضلع ورنگل میں اندھوناک واقعہ، مفرور بیٹے کی تلاش جاری۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ور، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں، چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گچی بولی کے PJR فلائی اوور کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر وزیر صنعت سری دھر بابو، وزیر پونم پربھاکر، میئر گدوال وجے لکشمی کے علاوہ ارکان مقننہ، GHMC کمشنر کے علاوہ دیگر عہدیدار موجود تھے۔ اس موقع پر منعقدہ جلسے عام سے ریونت ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانچا گچی بولی کی ترقی میں رکاوٹ کو دور کریں گے اور ترقی لائیں گے۔ کنچا گچی بولی کی اراضی پر ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔
इन्होंने कहा है कि जो रुकावट है वो आर्जी है। कंचा गच्चीबौली में नई कंपनियां कायम की जाएंगी जिसके जरिए 5 लाख अफराद को रोजगार फराहम होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पीजेआर की कोशिश की वजह से हैदराबाद को कृष्णा और गोदावरी का पानी हासिल हुआ है। वो अवामी कायद थे। हैदराबाद के दुमलगुड़ा में पीजेपी का मकान है जो जनता गैरेज की तरह है। इन्होंने कहा है कि शहर हैदराबाद बैनुल अक़वामी शहरों के साथ मुकाबला कर रहा है। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद की तरक्की में शैतानी ताकतें रुकावट पैदा कर रही हैं, लेकिन हमारा यज्ञम कभी नहीं रुकेगा। राइजिंग तेलंगाना 2047 निशाना हासिल करने के लिए हम सब के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि हैदराबाद पर दबाव बढ़ने की वजह से 30,000 एकड़ पर भारत फ्यूचर सिटी कायम की जाएगी। 2029 में असेंबली हलकों की 89 हदबंदी होने वाली है। शेरलिंगमपल्ली हलके में 4 असेंबली हलके होंगे। इन्होंने कहा है कि हर किसी को तरक्की का हिस्सेदार बनाया जाएगा। जलसे आम से श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर और दिगर ने भी खिताब किया। పి జనార్దన్ రెడ్డి జంట నగరాల సమస్యల కోసం పోరాడుతున్నప్పుడు వారిని చూడడం జరిగింది. ఇదే కాదు, వారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాదు నగర దాహార్తిని తీర్చడానికి హైదరాబాదు నగరంలో తీవ్రమైన నీటి ఎద్దడి సమస్య ఉండేది. ఎండాకాలం వచ్చిందంటే సచివాలయం ముందు కుండల ప్రదర్శన ఉండేది. వేలాది మంది మహిళలు అక్కడ పీజేఆర్ గారి నాయకత్వంలో ధర్నాలు చేసేది. ఇవాళ మేము చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు సహకరించక ఇవాళ ప్రతిపక్షం ఉన్న బెంగళూరుకు మోడీ గారు మెట్రో ఇచ్చారు. ప్రతిపక్షం ఉన్న డిఎంకేకు చెన్నైకి మెట్రో ఇచ్చిండు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు మెట్రో ఇచ్చిండు. గుజరాత్కి బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇచ్చిండు. 2 లక్షల కోట్లు ఇచ్చిండు. గుజరాత్కు సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ ఇచ్చిండు. ఢిల్లీకి యమునా రివర్ ఫ్రంట్ ఇచ్చిండు. ఉత్తరప్రదేశ్కు గంగా నది రివర్ ఫ్రంట్ ఇచ్చిండు. మరి మేము మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ అడిగితే మాకు ఇస్తలేడు. మేము మెట్రో రైలు అడిగితే ఇస్తలేడు. మేము రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అడిగితే అది అటకెక్కింది. ఎందుకు ఈ వివక్ష? ఎందుకు ఈ వివక్ష? కిషన్ రెడ్డి గారు, మీరు ఆలోచన చేయాలి కదా కేంద్ర మంత్రిగా. మేము చెప్పినాం కదా, మీ ఎంబడి వస్తాం, మీరు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళండి. భేషజాలు లేవు, నగర అభివృద్ధి చేసుకుందాం, తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం, మేము మీతో కలిసి వస్తామన్నాం. దాదాపుగా 30-35 సార్లు ఢిల్లీకి పోయినా, ప్రధానమంత్రిని కలిసిన, అమిత్ షా గారిని కలిసిన, అందరు మంత్రులను కలుస్తున్నా. నేను కలువని మంత్రి లేడు, చెయ్యని విజ్ఞాపన లేదు. రేపు కూడా అమిత్ షా గారు వస్తున్నారు. నేను మా మిత్రుడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, మా శ్రీధర్ బాబు గారు రేపు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి అమిత్ షా గారిని మళ్ళీ అడుగుతాం. మా మెట్రో మాకు ఇవ్వండి, మా మూసీ మాకు ఇవ్వండి, మా రీజనల్ రింగ్ రోడ్ మాకు ఇవ్వండి. ఈ 3 ఇస్తే మా నగరం ప్రపంచంతోనే పోటీ పడుతుంది. న్యూయార్క్లో ఉన్నవాడు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి అరే హైదరాబాద్ నగరంలో నేను నివసిస్తా, ఫ్యూచర్ సిటీలో నేను వ్యాపారం చేసుకుంటా. హాలీవుడ్ అమెరికాలో కాదు, హాలీవుడ్ను బాలీవుడ్ను ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరానికి తేవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి. మా వైపు నుంచి ఏమైనా లోపం ఉంటే చెప్పండి, మేము సరిదిద్దుకుంటాం. हुकूमत ने महकमे मेडिकल एजुकेशन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जुमला 607 जायदादों पर तक़र्रुरात का ऐलान किया है। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की जानिब से इस सिलसिले में एक एलामिया जारी किया गया जिसमें मुख्तलिफ 34 शोबों की सराहत की गई, जिसके लिए रियासत के मुख्तलिफ जोन्स के तहत ये तक़र्रुरात किए जाएंगे। दरख्वास्त ऑनलाइन 10 जुलाई से कबूल की जाएगी। आखिरी तारीख 17 जुलाई की शाम 5 बजे मुकर्रर की गई है। तनख्वाह यूनिवर्सिटी के ग्रैंड कमीशन के कवायद के ताबे होगी। तक़र्रुरात के तरीक़ेकार और इससे मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात इस एलामिया में दी गई हैं। इन तक़र्रुरात में रिजर्वेशन के कवायद पर अमल किया जाएगा। दर्ज फहरिस्त अक़वाम, क़बाइल, पसमानदा तबक़ात बशमूल BCE उम्मीदवार रिजर्वेशन के मुस्तहक़ होंगे। बीआरएस पार्टी के साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत ने झूठे कैलेंडर के जरिए नौजवानों को धोखा दिया है। टीआरएस भवन में बेरोजगार नौजवानों के साथ मुलाकात के इस मौके पर बेरोजगारों ने चलो सेक्रेटरीट प्रोग्राम को मदद करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने कहा है कि बेरोजगार नौजवानों से किया गया वादा पूरा करने के लिए बीआरएस पार्टी पूरी तायद करेगी। असेंबली में इस मसले को उठाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि बीआरएस हुकूमत में 1,62,000 मुलाजिमतें दी गई। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत में जॉब कैलेंडर के मुताबिक एलामिया जारी होंगे। नौजवान उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन अब तक एक भी एलामिया जारी नहीं किया गया। इन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी ने नौजवानों की डिक्लेरेशन का ऐलान किया था, फौरी
2 लाख मुलाजिमतें देने की बात की गई थी। इन्होंने कहा है कि कमीशन लिए बगैर फीस बाज़ अदायगी की रकम जारी नहीं की गई। हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने कहा है कि नौजवानों को खुद रोजगार एलामिया नहीं चाहिए, इसलिए धरना कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हुकूमत झूठा प्रोपगंडा कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली बी वेंकट ने कहा है कि घर घर मुलाजिमतें फराहम करने का केसीआर के वादे का सबूत पेश करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बीआरएस दौरे हुकूमत में 1,60,000 मुलाजिमतें देने का दावा कर रहे हैं। इसकी तफसीलात अब तक मंजर आम पर नहीं लाई गई। हरीश राव में हिम्मत है तो मुलाजिमतें फराहम करने के मामले पर खुले मुबाहिस के लिए आगे आएं। कांग्रेस के 18 माह के अरसे में हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतें दी हैं, इस पर हम मुबाहिस के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा है कि 10 साल हुकूमत में 2 लाख मुलाजिमतों पर भर्ती नहीं की गई। इक़्तिदार में रहकर हरीश राव ने कभी बेरोजगारों से मुलाकात नहीं की। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत 100% तमाम महकमों में मक़लूआ जायदादों की निशानदही करके तक़र्रुरात करेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी जांच पड़ताल के फैसले पर शदीद एतराज़ जताया है। सदर मजलिस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इसके ज़रिए रियासत में खुफिया तौर पर NRC नाफिज करने जा रहा है। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन बिहार में चुपके से NRC नाफिज कर रहा है। अब वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए हर शहरी को ये साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुआ था, यहां तक कि इसके वालिदैन कहां और कब पैदा हुए थे। सदर मजलिस ने इस अमल को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में काबिल एतमाद तखमीनों के मुताबिक सिर्फ 3/4 पैदाइश ही रजिस्टर्ड होती हैं और सरकारी कागजात में अक्सर बड़ी गलतियां पाई जाती हैं। इन्होंने कहा है कि इस नए अमल से लाखों ऐसे शहरियों को परेशानी होगी जिनके पास मुकम्मल दस्तावेजात दस्तयाब नहीं हैं। इन्होंने ख़ास तौर पर बिहार के सीमांचल इलाके की बात की जो अक्सर सैलाब से मुतासर रहता है और जहां की आबादी में बड़ी तादाद इंतहाई गरीब है। उनका कहना है कि ये लोग बमुश्किल दिन में 2 वक्त खाने का इंतज़ाम कर पाते हैं। उनसे ये तवक्को रखना कि उनके पास अपने वालिदैन के कागजात होंगे एक जालिमाना मजाक है। इन्होंने वोट डालने के हक़ को आईनी हक़ करार देते हुए खबरदार किया कि इस तरह की कार्रवाई के नतीजे में रियासत के गरीब और पसमानदा अफराद की एक बड़ी तादाद वोटर लिस्ट से बाहर हो सकती है। इन्होंने कहा है कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की मनमानियाँ रोकने के लिए सख्त तबसरे कर चुका है। इन्होंने मजीद कहा है कि इंतखाबात के करीब इस तरह की मश्क शुरू करने से अवाम का इलेक्शन कमीशन पर से एतमाद मुतज़लज़ल हो सकता है जो जमहूरी निज़ाम के लिए एक खतरा है। बीआरएस के रुकन असेंबली टी श्रीनिवास यादव ने हफ्ते के रोज़ खबरदार किया कि अगर अन्नपूर्णा कैंटीन्स का नाम तब्दील किया गया तो शदीद एहतजाज होगा। इन्होंने GHMC कौंसिल की मंजूरी के बगैर नाम की तब्दीली पर एहतजाज की धमकी दी है। सनत नगर के रुकन असेंबली तलसानी ने GHMC हेडक्वार्टर के बाहर बीआरएस कॉरपोरेटर्स के साथ एहतजाज करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो केसीआर हुकूमत के शुरू करदा अवामी फलाही प्रोग्रामों को ख़त्म करके अपना नाम चमकाना चाहती है। इन्होंने कहा है कि अन्नपूर्णा स्कीम शहरी गरीबों और योमिया मजदूरों को सस्ती ग़िज़ा फराहम करने के मकसद से शुरू की गई थी। इन्होंने मज़ीद कहा है कि अन्नपूर्णा सिर्फ एक स्कीम का नाम नहीं बल्कि एक देवी का नाम है जो विक़ार और रूहानियत की अलामत है। तलसानी ने याद दिलाया कि बीआरएस हुकूमत ने इख्तिदार में रहते हुए डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की आरोग्यश्री जैसी स्कीमात को बग़ैर नाम बदले जारी रखा। उनका कहना था कि हमने साबिक़ा हुकूमतों का एहतराम किया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने निर्मल बलदी इंतखाबात में ताख़िर पर रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत की जानिब से बलदी इंतखाबात कराने में नाकामी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। निर्मल म्यूनिसिपैलिटी की गवर्निंग बॉडी की मुद्दत 25 मार्च को ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ताहाल इंतखाबात नहीं कराए गए, जिस पर अदालत आलिया में एक दरख्वास्त दायर की गई। ये मुकदमा जस्टिस B विजय साइन रेड्डी की अदालत में सुना गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने फौरी तौर पर बलदियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि इंतखाबी अमल सिर्फ वार्ड रिजर्वेशन मुकम्मल होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। जब अदालत ने इस मामले पर हुकूमत से रिपोर्ट तलब की तो हुकूमती वकील ने 2 हफ्तों की मोहलत मांगी है। इस पर हाई कोर्ट ने अगली समाअत
11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। महकमे पुलिस में 44 डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSPs के तबादले किए गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक तबादले किए गए ओहदेदारों को जो नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, इन पर फौरी असर के साथ अमल होगा। DSP इंटेलिजेंस वाई नरसिम्हा रेड्डी का तबादला करते हुए उन्हें पद्मना भोला श्रीनिवास की जगह उनकी खिदमात कमिश्नर GHMC के तफवीज़ कर दी गई है। DSP DCRP संगारेड्डी G रणवीर रेड्डी का तबादला करते हुए उन्हें ACP SB हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। DSP DTC आदिलाबाद अनमोला श्रीनिवास को संपत कुमार की जगह ACP ट्रैफिक ईस्ट जोन मुकर्रर किया गया है। DSP सिविल के राम मोहन रेड्डी जो वेटिंग में थे को DSP हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुकर्रर किया गया है। DSP सिविल G श्याम सुंदर जिन्हें पोस्टिंग का इंतजार था को NNSV वेंकटेश्वर राव की जगह ACP मीर चौक मुकर्रर किया गया है। वेंकटेश्वर राव को DGP ऑफिस हैदराबाद रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। ACP CCS वो DD हैदराबाद B किशन कुमार को ACP आसिफ नगर मुकर्रर किया गया है, बजाय विजया श्रीनिवास के जो 3 जून को सबूकदोश हो रहे हैं। पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर ये तबादले किए गए। कांग्रेस लीडर साबिक रुकन कौंसल कुंडा मुरली गांधी भवन पहुंचकर तादीबी कार्रवाई कमेटी के रूबरू वजाहत पेश की। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस कायदीन के लिए उनके दिल में इज्जत है। इन्होंने जो बयान दिया है इसको इतना संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ उनकी बयानबाजी को लेकर पार्टी कायदीन ने उनकी शिकायत की थी। इस तनाजुर में कुंडा मुरली ने गांधी भवन पहुंचकर तादीबी कार्रवाई के सदर नशीन मल्लू रवि से मुलाकात करते हुए अपनी सफाई पेश की। 6 सफ़हात पर मबनी मकतूब भी तादीबी कार्रवाई कमेटी को पेश किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि कमेटी के सदर नशीन मल्लू रवि को मेरे बयान से मुताल्लिक़ वजाहत पेश की है। इन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी फिर वज़ीर आला उन्हें बनना चाहिए। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के असम्बली मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला अवामी कामों का जायज़ा ले रहे हैं। मलकपेट कदीम डिवीज़न के तहत इन्होंने रानी बाग शाह लाइन के इलाकों का ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। सिवरेज, ड्रेन, रोड्स और दीगर ज़ेर इल्तिवा कामों की आजिलाना तकमील के लिए ओहदेदारों को हिदायतें दी हैं। GHMC हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सिवरेज बोर्ड, बरक़ी मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर, स्ट्रीट लाइट और दीगर बलदी इदारों के ओहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफ़ी, मजलिस के इब्तदाई ओहदेदारान, सरगर्म अराकीन व आवाम की कसीर तादाद इस दौरे में शरीक थी। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराश ने रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा मुख्तलिफ आशुरखानों का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने माह मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के सिलसिले में बीबी का अलावा और शहजादा कासिम अलावा का अहाता किया, जहां CC रोड के काम करीबुल ख़त्म हैं। इन्होंने बताया कि सड़क के कामों की वजह से बाज़ जगह मलबा पड़ा हुआ है, जिसे जल्द ही उठा लिया जाएगा और बीबी के अलम की गुजरगाहों को साफ़ सुथरा और किसी भी रुकावट से पाक किया जाएगा ताकि जुलूस पुरसुकून अंदाज में गुजर सके। इस मौके पर मजलिस के रुकने बलदिया आलमदार वाला जाही के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। दारुस्सलाम में रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियासुल हसन आफंदी ने सदर मजलिस की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए, जिससे ज़ायद 60 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफ़ादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने रियाजुल हसन आफंदी से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया मोहसिन बलाला के अलावा सैयद आसिफ भी मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी ने वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्ला से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने असदुल्ला से कहा कि मुकामात मुक़द्दसा में पेश आने वाले मसाइल की वजह से वहाँ ज़ियारत को आने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताज़ा वाक़े में दरगाह
یوسفین درگاہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ میں پانی کی موٹر خراب ہونے سے حضرت زیارت کو آنے والوں کو وضو اور دوسرے کاموں کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقف بورڈ بلا تاخیر مسائل کی یکسوئی کرے تو بہتر رہے گا۔ بعد میں مرزا رحمت بیگ قادری نے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے علاقے آغا پورہ اور سینٹرل بیکری کا سرکاری محکمہ جات کا عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے اور یکسوئی کی ہدایت دی۔ اس موقع پر سرکاری محکمہ جات، برقی، بلدی اور آبرسانی کے عہدیداروں کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے تاریخی مکہ مسجد اور مسجد شاہی باغ عامہ کے ملازمین کی تنخواہوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے پرنسپل سیکرٹری اقلیتی بہبود شفیع اللہ سے سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ انہوں نے شفیع اللہ کو اس بات سے واقف کروایا کہ گزشتہ 3 مہینوں سے دونوں مساجد کے ملازمین کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں، جس سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے، جس پر شفیع اللہ نے تنخواہیں جلد ادا کروانے کا تیقن دیا۔ ریاستی حکومت کی لاپرواہی سے مساجد کے 24 ملازمین متاثر ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سلسلے میں دونوں مساجد کے ملازمین نے دارالسلام میں صدر مجلس سے ملاقات کر کے اپنے مسائل سے انہیں واقف کروایا تھا۔ اس سلسلے میں ملازمین کی جانب سے ایک مکتوب بھی پرنسپل سیکرٹری شفیع اللہ کو دیا گیا، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ وہ گزشتہ 25 سالوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کی تنخواہیں بالکل ناکافی ہیں۔ اس موقع پر مجلس کے نمائندے کارپوریٹر ساحل اکبر کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ دارالسلام کوآپریٹو اربن بینک نے مالی سال 2024-25 کے دوران 456.20 کروڑ روپے کے قرض جاری کیے اور 10.17 کروڑ روپے کا خالص منافع حاصل کیا۔ بینک کے 38ویں سالانہ جنرل باڈی اجلاس میں یہ بات بتائی گئی۔ بینک کے صدر نشین مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صابری نے رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق بینک کے ڈپازٹ بڑھ کر 718.90 کروڑ روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ بینک کی کارکردگی کا احاطہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بینک عوام کے تعاون سے ہر سال ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ بینک کے محفوظ فنڈز میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جو بڑھ کر 184.67 کروڑ روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ بینک نے مختلف مالیاتی اداروں میں 398.13 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جس میں 270.11 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری گورنمنٹ سیکریٹریز میں کی گئی ہے۔ بینک کی جانب سے کمزور طبقات کو 290.86 کروڑ روپے کے قرض جاری کیے گئے، جبکہ ترجیحی شعبے میں 296.80 کروڑ روپے کا قرض دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ بینک کی 9 شاخیں کام کر رہی ہیں، 8 ATM اور کیش ڈپازٹس مشینیں کارکرد ہیں۔ بینک کی جانب سے مختلف فلاحی کاموں کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ اجلاس میں ارکان بورڈ آف ڈائریکٹر برہان الدین اویسی، عالم پلی نریندری، ملیحہ فریسہ، YMR ارشد، ڈاکٹر سید یافعی، تبریز اللہ خان، سید علی علمدار کے علاوہ انتظامی بورڈ کے ارکان CEO محمد خواجہ اکرام الدین، پریتم چند یادو، محمد ابرار احمد، ڈاکٹر محمد عبد الملک کے علاوہ شیئر ہولڈرز، کھاتے داروں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ ایڈیٹر سیاست زاہد علی خان و نیوز ایڈیٹر عامر علی خان، جو رکن قانون ساز کونسل بھی ہیں، کہ قیامگاہ لیک ڈل واقع میر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہاڑی کشن باغ کا ہائی کورٹ کی ہدایت پر مختلف محکمے جاتی سروے کیا گیا۔ وقف بورڈ، ہیڈرا، محکمہ ریونیو، عمارت و شعراء، آب پاشی کی جانب سے یہ مشترکہ سروے کیا گیا ہے۔ ان کی قیامگاہ کے بارے میں چند درخواست گزاروں کی شکایت پر ہائی کورٹ نے سروے کی ہدایت دی ہے۔ شکایت کنندوں نے عدالت کو بارور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ قیامگاہ درج رجسٹرڈ وقف ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قیامگاہ آبی آبگیر علاقے FTL کا حصہ ہے، اس لیے قانون کے مطابق یہ غیر مجاز ہے۔ اس قیامگاہ کا رجسٹریشن زاہد علی خان کے شریک حیات شمس زاہد علی خان کے نام پر ہے۔
2 घंटों से ज्यादा जारी रहे इस सर्वे के बाद ओहदेदारों ने मीडिया के नुमाइंदों से कहा है कि हाई कोर्ट की हिदायत पर यह सर्वे किया गया। सर्वे की रिपोर्ट वो अदालत को पेश करेंगे। चूंकि ये मामला अदालत पे ज़ेर समाअत है, इसलिए वो सर्वे के नताइज से सिर्फ अदालत को ही वाकिफ करवाएंगे। बीआरएस कारकुनों ने एक तेलुगु न्यूज चैनल पर हमला कर दिया, ऑफिस में तोड़फोड़ मचाई। फोन टैपिंग मामले पर केटीआर के खिलाफ गलत खबरें शाया करने पर बरहम होकर ये कार्रवाई की गई। कारकुनों ने कार को भी निशाना बनाया। चैनल के स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने चैनल का दौरा किया। इन्होंने कहा कि हमले की तफसीलात हासिल की जाएंगी। इन्होंने चैनल के एमडी वंशी कृष्णा से बात की। इन्होंने कहा है कि खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सजा दी जाएगी। इन्होंने कहा है कि शख्सी खबरें आने पर ट्वीट के जरिए कारकुनों को इश्तियाल दिलाकर हमला करवाया गया। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद के ब्रांड इमेज को कम करने, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की गई। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इन्होंने कहा है कि हमला मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया। इन्होंने कहा है कि इस हमले की तहकीकात होगी। रचकुंडा शी टीम ने शहर में खवातीन को हरासा करने के इल्ज़ाम में 141 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान में 42 नाबालिग भी शामिल हैं। शी टीम के मुताबिक 1 जून से 15 जून के दरमियान 163 शिकायत मौसूल हुई। शी टीम को ये शिकायत मेट्रो ट्रेन्स, स्टेशंस, बस स्टॉप्स, वर्क प्लेसेस और कॉलेजों से व्हाट्सएप, रास्त और सोशल मीडिया के जरिए मौसूल हुई थीं। प्रेस रिलीज के मुताबिक गिरफ्तार शुदा अफराद ने एलबी नगर में पुलिस कमिश्नर के कैंप ऑफिस में माहिर नफ्सियात के जरिए मुनक्किदा लाजमी काउंसलिंग सेशन में शिरकत की। इस सेशन में नाबालिगों की भी काउंसलिंग की गई। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन समेत मुख्तलिफ मकामात से पकड़े गए 6 अफराद पर जुर्माने भी आयद किए गए। इस बीच रचकुंडा पुलिस ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ताउन से 2 नाबालिग शादियों को भी रोकने में कामयाबी हासिल की। रियासत में महकमे ट्रांसपोर्ट के चेक पॉइंट्स अब बदउनवानी के अड्डे बन चुके हैं। एसीबी की वीडियो जांच से ये बात सामने आई है कि रियासत में हर जगह दलालों का राज है और गैर कानूनी वसूली की जा रही है। ज़राए का दावा है कि महकमे की ये बेकायदगियाँ खुली आंखों से नहीं देखी जा सकती। इन बेकायदगियों से सरकारी खजाने को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अवाम का करोड़ों का पैसा कुछ बदउनवान अफसरों की जेबों में जा रहा है। एसीबी का कहना है कि रियासत के सरहदी चौकियों पर कुछ अफसरान मनमानी वसूलियों की आदी हो गए हैं। एसीबी हुक्काम ने ये इत्तला दी है। तेलंगाना महाराष्ट्र पर ज़िले कामारेड्डी के सरहद पर मदनूर में वाक़े RTA चेक पोस्ट पर एसीबी ने बुध के रात जुमेरात की सुबह तक वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिनमें इन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। जिले वरंगल के संगम मंडल के कंटापल्ली गांव में हफ्ते की अलग सुबह जायदाद के तनाज़े में एक खातून को उसके बेटे ने जिंदा जला दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मेथिनी सत्या ने मुबैना तौर पर अपनी 50 साल माँ विनोदा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। खातून को शदीद झुलसी हालत में MJM हॉस्पिटल वरंगल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर ने बताया कि खातून 85% झुलस चुकी है। मां ने बेहोश होने से कबल मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में अपने बेटे को हमले का जिम्मेदार करार दिया। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने खातून के अहल खाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और इसकी तलाश शुरू कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मां बेटे के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था, जो इस संगीन हमले का सबब बना। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद।
जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। कंचा गच्चीबोली अराजी पर तरक्याती कामों की रुकावट आर्जी शैतानी ताकतें तरक्की में रुकावट नहीं बन सकती। PGR फ्लाई ओवर ब्रिज का वजीर आला के हाथों इफ्तिताह। मेडिकल एजुकेशन के शोबे में 600 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुरात का एलामिया जारी। UGC स्किल मुख्तलिफ तबकात बशमूल BCE जुमरे को रिजर्वेशन। बिहार में खुफिया तौर पर NRC नाफिज करने इलेक्शन कमीशन की दानिस्ता हरकत। गरीब राय दहिंदों को फहरिस्त से निकालने की कोशिश, सदर मजलिस का शदीद रद्द अमल। बोगस जॉब कैलेंडर का वादा, बेरोजगार के साथ धोखे के मुतरादिफ। हरीश राव का इल्जाम, रोजगार फराहमी से मुताल्लिक खुले मुबाहिस का कांग्रेस ने दिया चैलेंज। और जायदाद का झगड़ा, शैतान सिफत बेटे ने मां को जिंदा जला दिया। जिले वरंगल में अनहोनाक वाकया, मफरूर बेटे की तलाश जारी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।